बिफोर कमिंग फॉर रसमस्ती एक्चुअली ये सब्जेक्ट जो था थोड़ा सा नॉलेज था इसके बारे में कि क्या होने वाला है, बट such a deep subject that we have been doing business for the past 20 years, and even after doing for 20 years, when we came for this 4 days, after the 4 days course what we did, you can connect that इसमें से कुछ भी नहीं कर रहे थे 20 साल में काम कर रहे थे, लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर बिजनेस नहीं कर रहे थे प्रॉपर. So that was the main crux कि क्या करना चाहिए और क्या कर रहे थे. The difference was the real. It is just not about learning something. It is about understanding the very basics of the business, about rethinking on where we are doing wrong, what needs to be done right, and how fast you should do it. We have been into this business from long time. Like I have more than 20 years of experience. But after attending this program, I thought of that this was something which I should do in the very early stages of my career. But I could not do it. I was not aware of it. So I ensure that they should attend this program and learn from it as much as possible. So it's a great experience. हर्ड अबाउट क्रिसलिस, सुना था, डिक्शनरी में वर्ड खोजा उसका, मतलब मीनिंग क्या है उसका. देन आई फाउंड आउट कि इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कैटरपिलर टू अ वेरी वंडरफुल बटरफ्लाई. भाई दम तो है. देन केम अक्रॉस TGOB with references of few of my friends. The only thing which convinced me was the tagline, are you running the business or is your business running you? Then came change. For the first time एकदम एडमेंट हुआ करते थे, मतलब एकदम रिजिड हुआ करते थे. ऐसा लगता था तू सिखाएगा आप मुझको यार, मतलब एक वो सुनने की आदत नहीं थी. एंड देन वी रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट चेंज इज, एंड द ओनली लाइन विच आई टुक, और रादर आई से विच आई टेक फ्रॉम हियर थ्रू आउट माई लाइफ इज, चेंज इज ओनली द कॉन्स्टेंट. हमें क्या मिला, हार्नेक्स को क्या मिला, ये पिछले 2-2.5 साल में एक प्लांट से अभी हमारे 3 प्लांट्स है. महाराष्ट्र के बाहर, पूना से बाहर हम लोगों ने कभी काम नहीं किया, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आया कि किसी और स्टेट में जाके आपके एग्जिस्टिंग यूनिट से 3 गुना बड़ा यूनिट आप लगा सकते हो. सॉफ्टवेयर में आई रिमेंबर टैली में जो एनुअल रिन्यूअल होता है वो 10,000 रुपये का कुछ होता है, तो वो भी हमको अभी ज़रूरत है क्या करने की, अभी कोई अपडेट आने वाला है क्या, ये सोच के हम लोग करते थे. एंड S/4HANA SAP का हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन अभी किया है. Again, so right, coming from this mindset to a mindset where you can spend crores of rupees on software is also a big shift. First of all, I think this is a wonderful program, and the way it has been designed, it's absolutely the content is very powerful, but it has been conveyed in a very beautiful manner, in a very simple language, and every time you go through a session, you come to a realization point where it just gets into your system, and you feel that excitement and the urge that I just want to get back and start working on this and execute this, just go ahead and execute these plans. Basically, it was a mirror to us, to me as well as my colleagues. We thought that we are a part of management, means we lead the organization, and whatever we think and are doing is very much appropriate for our organization. But going through this past 4 days, we had a very little idea. now we can say we had just 5 or 10% of our idea about what leadership is, what all needs to be done to create a Rasamasti enterprise. The respect and the longevity would come only if you are having your core cultural, means you are able to lead by the example, and there are lot many learnings have happened in this last 4 years. बट 4 दिन में लगभग हमने 8-8, 10-10 घंटे कंटिन्यूस ट्रेनिंग करके जो है काफ़ी सारा इनपुट लिया है. और जैसा सर ने मुझे कहा था कि आप अपने जो सीनियर मैनेजमेंट है तो उनको लेके आओ, वो मुझे काफ़ी हेल्प हो गया. और मुझे लगता है मेरे इम्प्लीमेंटेशन में जो है, बिकॉज ये काफ़ी सारे इनपुट हम जो लेके जा रहे हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन में जो है कि
जो अपनी सीनियर मैनेजमेंट टीम अगर इन्वॉल्व है मेरे साथ, तो जो अलाइनमेंट जो है कि मेरा है उनका है, वो अगर होता है तो जो ग्राउंड लेवल में जो है, नीचे लेवल में जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए, दैट विल हेल्प लॉट. So one of the first things that we learned in EEP is defining core values and aligning the team to the core values. We started thinking more from a strategic point of view rather than the daily operations. We defined goals that were long term. Let's say next 5 years. We broke them down to 3-year strategies. Then we broke it down further to 1 year, and we started methodically working on them. On a team level, the changes have been marvelous because they were included in a lot of discussions, a lot of brainstorming. They started sharing how they're implementing the core values that we have set. And what happened is everybody started talking the same language. I think that is the biggest gain. मैंने बहुत से सर के प्रोग्राम किए हैं और हर प्रोग्राम में अलग अलग वर्डे हमको मिले हैं। जो सर ने साम्राज्य से लेके परिणाम तक का जो हायरार्की बताया और उसको पैरेलली कंपेयर किया बिजनेस और उसकी स्ट्रैटेजीज, गोल एंड दिस। एक तो पहले ये कंपेयर हो सकता है या ये सिनोनिम हो सकता है, यही समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये जब कनेक्ट किया तो अपने आप उसकी हर एक फैक्टर्स को समझना अच्छा लग रहा था और समझ आ रहे थे। उसमें जो सर ने लास्ट का कल्चर जो बताया, तो मुझे लगता है कि दैट वाज माय वड़ा इन द पूरा लिस्ट में से, क्योंकि अगर हम कल्चर डेवलप करने में अगर अच्छे हो सकते हैं तो बाकी चीज़ें अपने आप आने वाली है। तो मुझे लगता है कि मेरा बड़ा कल्चर है और उस पर मैं जाते ही इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन मेरा कल्चर पे होगा। सारे एंटरप्रेन्योर्स जो है वो एक सैटेलाइट की तरह होते हैं। हमारे में ऊंचाई पर जाने की क्षमता तो है, लेकिन हम सबको ज़रूरत हुई है एक रॉकेट की, जो हमें ज़मीन से ऊपर अंतरिक्ष में ले जाकर उस ऑर्बिट में छोड़े, जहाँ से हम खुद ब खुद अपने बिजनेस को एक अलग अंदाज में देखने लगे और चलाने की काबिलियत रखे। और मुझे शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे वो रॉकेट कौन है, हमारे सबके प्यारे एमजी सर। लेकिन इसमें एक फ़र्क है, ये जो रॉकेट होता है वो हमको सैटेलाइट को लेके ऑर्बिट में छोड़ के खसकी मार लेता है। तो एमजी सर का ध्यान रहता है कि ये ऑर्बिट में भी हम लोग कहीं ना कहीं उसी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो वो जो एक एस्केप वेलोसिटी लगती है उस ऑर्बिट से अलग ऑर्बिट में जाने की, तो वो ध्यान रखते हैं और वो देखते हैं कि अगर कंफर्टेबल हो रहे हैं तो एक जोर का झटका धीरे से दे देते हैं ताकि हम लोग आगे वाले ऑर्बिट में निकल जाए।